Good morning, students. Hope you all are fine. Our today's topic is pistil or carpel, the female reproductive organ, which is a part of gynoecium. Gynoecium is also called megasporophyll, represent the female reproductive organ of flower. It may consist only one carpel, then it is called monocarpellary condition. If it has two carpels, then it is called bicarpellary condition. If it has three carpels, then it is called tricarpellary condition, and if it has multiple or many carpels, then it is called multicarpellary system. The gynoecium is maybe apocarpus or syncarpus. The gynoecium may be apocarpus or syncarpus. If our carpels are separate from one another in gynoecium, then it is called apocarpus condition. If carpels are fused together, then this condition is called syncarpus condition. If the basal part of carpel must fuse for syncarpus condition, parts of style and stigma can be free. Its example is hibiscus. The condition is called apocarpus if its ovaries are free but the other part are fused. Its example is oleander. Here we are going to discuss about the structure of pistil or carpel. What is pistil? The free unit of gynoecium. It has three main parts: stigma, style, ovary. The stigma is terminal receptive part of the pistil which function as landing platform for the pollen grain. It may be sticky or feathery. It also determines the compatibility and incompatibility of the pollen grain. Our next part is style. The style is elongated narrow stalk that connect the ovary with stigma. And the ovary is the basal swollen part of the pistil. It has ovarian cavity. This is the ovarian cavity with one or more chambers, or we can say locules, which contain ovules inside it. Single ovary may contain one or several ovules. For example, wheat, paddy, mango, these contain only one ovule. And the other example are papaya, watermelon, orchid. These contains multiple ovule structure. So we are now going to study about the structure of ovule. What is ovule? This is the structure of ovule. The ovule is the integumented megasporangium found in spermatophyte which developed into seed after fertilization. जो हमारा ओव्यूल है ये इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनाता है, सीड बनाता है. एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल इज टिपिकल एंड ओवोइड एंड व्हाइटिश इन स्ट्रक्चर. व्हाइटिश होता है स्ट्रक्चर में. इट अकर्स इनसाइड ओवरी वेयर इट इज अटैच्ड टू द पैरेन्काइमेटस कुशन कॉल्ड प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के साथ ये क्या होता है, जुड़ा होता है. ये जो प्लेसेंटा हमारा है इसको हम फनिकुलस भी कह सकते हैं, फनिकल भी कह सकते हैं, या प्लेसेंटा भी कह सकते हैं. जहाँ पे हमारा जो प्लेसेंटा है या फनिकुलस है ये बॉडी के साथ, ओव्यूल की बॉडी के साथ अटैच होता है. उस रीजन को जहाँ पे ये प्लेसेंटा हमारा ओव्यूल के साथ अटैच है उस रीजन को हम क्या कहेंगे, हिलियम. और यही पार्ट जब आगे की तरफ एक्सटेंड होता है तो उसे हम कहते हैं राफे. देन इट इज कॉल्ड राफे. डिपेंड करता है ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन पे कि हमारा जो प्लेसेंटा है उसके साथ बॉडी जो है किस एंगल पे अटैच हो रखी है, किस ओरिएंटेशन पे अटैच है. उसके बेस पे ओव्यूल्स जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं: ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कॉम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सिर्सिनोट्रोपस. These are different kind of ovules. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द बॉडी पार्ट ऑफ ओव्यूल. The body of ovule consists of a mass of parenchymatous cells named nucellus. This is nucellus part of the ovule. It is equivalent to megasporangium. Nucellus may quite massive or thin. It is surrounded by one or two or
मैनी इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स से हमारी न्यूसेलस के अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक जो है वो रिजाइड करता है और इसके चारों तरफ कवरिंग किसकी होती है, इंटीग्यूमेंट्स की। जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो चैलेजल एंड से अराइज होती हैं। इंटीग्यूमेंट्स का जो काम है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। इंटीग्यूमेंट्स डिफरेंट नंबर्स की हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है। मेन काम होता है बस इनका प्रोटेक्शन का। चैलेजल एंड से ये अराइज होती हैं। उसके बाद जहाँ पे ये नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रही होती हैं, हमारी जो इंटीग्यूमेंट्स हैं ये नीचे की तरफ जब एक्सटेंड कर रही होती हैं तो एक नैरो पोर या पासेस जो हैं वन एंड पे वो छोड़ देती हैं, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। अपोजिट में इसके चैलेजल एंड होता है और ये हमारा माइक्रोपाइल एंड है। एक्चुअली जब हमारी पोलन ट्यूब एंटर करती है, पोलन ट्यूब एंटर करती है तो वो माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है। ये सिंगल वे नहीं है पोलन ट्यूब के एंटर करने के लिए। पोलन ट्यूब हमारी चैलेजल एंड से भी एंटर कर सकती है, इंटीग्यूमेंट्री एंड से भी कर सकती है और माइक्रोपाइल से कर सकती है। जब चैलेजल एंड से पोलन ट्यूब एंटर करती है तो उसे चैलेजोगैमी कहते हैं। माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है तो पोरोगैमी कहते हैं। और अगर इंटीग्यूमेंट्स को क्रॉस करते हुए एंटर करती है पोलन ट्यूब तो उसे हम मीजोगैमी भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं पोलन ट्यूब के एंटर करने के लिए, बट ये वाला रीज़न हमारा क्या है, माइक्रोपाइल है। इसके साथ क्या कह रहा है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है एंड एम्ब्रियो सैक है ये दोनों ही माइक्रोपाइल हाफ जो हमारा पार्ट होता है न्यूसेलस का उसके अंदर रिजाइड करते हैं। जो एम्ब्रियो सैक रीजन है, एम्ब्रियो सैक हमारा 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन में मिलता है। एम्ब्रियो सैक में जो अपर साइड ये हमें चैलेजल एंड की तरफ 3 सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये हमारी एंटीपोडल सेल्स हैं। ईच सेल हैज सिंगल न्यूक्लियस। उसके बाद नीचे की तरफ माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो हमें 3 सेल्स नज़र आ रही हैं, ये इनमें से सेंट्रल सेल जो हमारी है वो एग सेल है। बाकी की जो साइड सेल्स हैं ये हमारी सिनर्जिड सेल्स हैं। तीनों कंबाइंडली कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, एग एपरेटस। एग सेल और सिनर्जिड सेल्स तीनों कलेक्टिवली कहलाएंगे हमारे एग एपरेटस। बीच की जो सेल होती है ये सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाइज मिलती हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाइज कहते हैं। जो हमारा एम्ब्रियो सैक है ये 7 सेल स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बट इसमें न्यूक्लियस जो है वो 8 है। सेंट्रल सेल जो हमारी उसके पास 2 न्यूक्लियस है, बाकी की 6 सेल हमारी जो है वो सिंगल न्यूक्लिएटेड है, बट सेंट्रल सेल हमारी बाइन्यूक्लिएटेड है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे ओव्यूल की है। ये जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की है। थैंक यू स्टूडेंट्स।